Student, today we are going to learn one another simple experimental activity. Yes, we have learned here a simple experimental activity. Before it, we have learned the one experimental activity. Do you remember it? That is related to the light. This is our second experimental activity related to the light. And before it, we have carried the experiment related to the light. Yes, do you remember what's the aim we have learned there? That is a refraction of light. Very good. वो हमने refraction of light को वहाँ पे देखा था. Yes, how the light goes to reflect by using the glass slab. We have learned there. Again, we have learned here our second experiment, which is related to our light chapter. So, in this experiment, we have learned one aim. What is the aim? Our experiment, that is to obtain the clear image on the screen by using the convex lens. We learn here one principle also. In this case, is equal to the distance between the lens and screen. Just by focusing the image of the distinct object on a screen, we will find the focal length of the convex lens. Yes, and what is the principle behind this? We will learn in this experiment. Actually, when the image of the distinct an object, the light ray coming from the distinct object. That's okay, and they comes parallel to the principal axis. Then this light is passes from the convex lens. Yes, and these are focusing at the particular point, and that particular point is known as a focus point. Yes, okay, that is a focus point, and it's indicated as a that is a capital F. And that image is focused on the screen itself. So we will learn here. So let us start our experiment activity. We will follow this. So let us start this experimental activity. We require some factors. So which is our requirement for the carrying this experimental activity? So our requirement is here mostly, that is a convex lens. After then we require here the screen and meter scale and stand, just for the supporting to the lens here. So in this way we collect it. These are our requirement here, and after collecting it our requirement, we carry the procedure. We follow our experimental activity, and for this activity we remember always, yes, we have used their steps. Step by step we have followed it. So that is the first step, keeping the screen fixed. हमें स्क्रीन को फिक्स करना है पहले, एंड ऑब्टेन द क्लियर इमेज ऑन दैट स्क्रीन. उसी स्क्रीन के ऊपर हमें यहाँ पे क्लियर इमेज ऑब्टेन करनी है, इसीलिए पहले स्क्रीन को क्या कर लेना है, फिक्स करके रखना है. ठीक है, और उसी स्क्रीन के ऊपर हमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जस्ट कोई भी हमने जो चूज किया है उसकी इमेज वहाँ पे हमें क्या करनी है बेटा, ऑब्टेन करनी है. यस, ऑब्टेन द क्लियर इमेज ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट लाइक अ ट्री. एग्जाम्पल, जैसे कि हम देखिए बेटा अपनी क्लासरूम में बैठे वाले हैं. अभी क्लासरूम के बाहर हम जब देखते हैं विंडो से या डोर से, तो हमें यहाँ पे कुछ दूरी पे कुछ पेड़ दिखाई देते हैं. वैसे ही ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पे चूज करना है ना बेटा. तो इसके बाद सेकेंड एक्टिविटी, फॉर इट्स वी हैव यूज द विच काइंड ऑफ द लेंस, दैट इज अ कॉन्वेक्स लेंस. यहाँ पे हम कॉन्वेक्स लेंस को यूज करेंगे. अगेन देखिए बेटा, थर्ड स्टेप, measure the distance between the screen and lens with the help of the meter scale. और जैसे हमें स्क्रीन के ऊपर क्लियर इमेज बनेगी, मिलेगी, तभी हमें क्या करना है बेटा, मीटर स्केल के द्वारा वहाँ पे स्क्रीन एंड लेंस, इसमें दोनों में जो डिस्टेंस है, उस दोनों में जो डिस्टेंस है उसको मेजर करना है. और मेजर करके वही मिलने वाला जो डिस्टेंस हमें सेंटीमीटर में मिलेगा, वो हमें ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या करना है बेटा, उसको पुटअप करना है, उसको राइट डाउन करना है ऑब्जर्वेशन टेबल में. ठीक है, नाउ टर्न द अदर साइड ऑफ द लेंस टुवर्ड द स्क्रीन. ठीक है, फिर ये
ये वाला प्रोसीजर हमें करना है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगेन ऑप्टेन द क्लियर इमेज। अभी यहाँ पे क्लियर इमेज को ऑप्टेन करने के लिए, ठीक है बेटा, फ्रॉम दैट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन बाय मूविंग द लेंस। हमें लेंस को क्या करना है, इसे मूव करते रहना है। ठीक है। और जैसे हम मूव करते रहेंगे और जहाँ पे क्लियर इमेज बनेगी वहाँ पे वो मीटर स्केल के द्वारा मेजरमेंट करेंगे। ठीक है। और जो भी कुछ हमें वो मेजरमेंट करने के बाद जो उसकी जो फिगर मिलेगी सेंटीमीटर में, उसको हमें ऑब्जर्वेशन टेबल में यहाँ पे क्या करना है बेटा, टिक डाउन करना है, राइट डाउन करना है। ठीक है। चलिए, measure the distance between the screen and lens again, and we have follow this procedure just repeatedly 3 to 4 times, just for our getting the accuracy here. We have followed it, but we have followed the stepwise procedure here, and this is a activity. Just okay, it's a very important here. And for this carrying this activity, yes, in our next slide we have only just observe the diagrammatic representation there. So we comes in our next slide. In this slide we have learned the diagrammatic representation. Actually, when you learn the lenses, that time we have represent the diagram, but we have used a different method. That is, we have used here the ray diagrammatic representation. Yes, okay. And how we have used its ray diagrammatic representations? Yes, those are very important here. And we have for sketching it or the drawing the representation of the ray diagrammatic representations, we have used the terms which is related to the lenses, है ना। जो लेंसेज से रिलेटेड टर्म्स हमने जो पहले पढ़ी है, उसी टर्म्स को लेकर हम यहाँ पे डायग्राम को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। अभी देखिए बेटा, यहाँ पे एक डायग्राम बनती है, मिलती है, लेकिन देखिए बेटा यहाँ पे डायग्राम जैसे हमने कंस्ट्रक्ट की है, तो जैसे कंस्ट्रक्ट करते समय यहाँ पे हमने पेड़ बताया है जो कि बहुत ही दूरी पे है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट पे है। ऐसे कोई भी लंबाई के ऊपर या डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे ऐसे स्केच नहीं कर सकते, इतना हम अपना ड्राइंग ऐसा इतना अच्छा हो ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे। ठीक है बेटा। तो इसी को जैसे हम रे डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पे हम उसको रे के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, और उस स्पेशली इट्स वेरी सिंपली एंड it's a convenient concept is a very easy by using the ray diagram. This okay. अभी देखिए यहाँ पे जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे बताया, तो यहाँ पे दूरी पे जो पेड़ दिखाई देता है ना। यहाँ पे हमने लेंस ऐसे फिक्स कर दिया है, इसे एडजस्ट कर दिया है ना बेटा, और यहाँ पे स्क्रीन को भी फिक्स कर दिया है। एक्चुअली स्क्रीन को फिक्स करना है, लेंस को हमें मूवेबल रखना है, और हम इसे मूव करते हुए स्क्रीन के ऊपर हमने यहाँ पे दूरी के जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे पेड़ है, तो हम स्क्रीन के ऊपर वहाँ पे उसकी क्लियर इमेज जब बनती है ना, तो वहाँ पे उसी पॉइंट को लेकर, जैसे लेंस का फिक्स पॉइंट है ना, जो पॉइंट वहाँ पे मिला जिस डिस्टेंस पे, तो वो डिस्टेंस से लेकर जो स्क्रीन का डिस्टेंस, इसको हम मेजर करेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज अ फोकल लेंथ। क्योंकि जहाँ पे हमें क्लियर इमेज मिलती है स्क्रीन के ऊपर, वही जो लेंथ होती है बिटवीन द लेंस एंड स्क्रीन, उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज वन है वो फोकल लेंथ। वो एफ से इंडिकेट की जाती है। एक्चुअली देखिए बेटा, तो फोकल लेंथ, ये जो फोकल लेंथ होती है, तो हम जैसे दैट इज अ जैसे डिस्टेंस ऑफ रेडिया, इसके वो क्या होती है बेटा, डबल होती है। एक्चुअली नियर अबाउट वहाँ पे हमें कितनी मिलती है बेटा, डबल मिलती है। तो ये हमने यहाँ पे लर्न किया है। तो यहाँ पे हमें क्लियर इमेज मिल रही है, लेकिन यही मिलने वाली इमेज हमें क्या करनी है बेटा, इसको रे डायग्राम के द्वारा हमें यहाँ पे लर्न करना है। तो इसके लिए में हमें क्या कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, या कुछ प्रिंसिपल को लर्न करना पड़ता है। तो यही प्रिंसिपल हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो लर्न्स द सम प्रिंसिपल or rules, yes, which is related to the refraction. Yes, and we have construct the ray diagram by using the terms of refraction which is related to the lenses.
In case of mirror, also we have lens there, but there is a somewhat different. Why? Because lenses show the refraction. Lenses show the refraction. Actually, and belonging to that refractions, there are some rules we have followed here, and with the help of that rule, we have construct the ray diagram. And it's a very important terms in necessary to construct the ray diagram of the lenses. So we have learned here the rules. There are three main rules we have learned here, and for each I have represent here three lenses. Different lenses I have take here on the screen here. So I have took here three lenses. देखिए बेटा, अभी लेंसेस मैंने यहाँ पे ली वाली है, मुझे तीन रूल यहाँ पे तुम्हें बताना है, ठीक है। अभी वो तीन रूल या तीन प्रिंसिपल हम यहाँ पे अभी लर्न करेंगे। तो जैसे लेंस होता है, तो लेंस क्या है बेटा, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सरफेस, है ना। तो दो सरफेस यहाँ पे कंबाइन होकर यहाँ पे लेंस बनता है ट्रांसपेरेंट मीडियम में। एक्चुअली जो लेंस बनते हैं, तो देखिए बेटा, हर एक लेंस के लिए यहाँ पे क्या होगा, उसका एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा हर एक लेंस के लिए, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे तीन लेंस लिए वाले हैं, अभी एक एक करके हम यहाँ पे तीनों को भी फॉलो करेंगे, ठीक है बेटा। पहला, जैसे पहले वाली लेंस के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस रेड कलर की यहाँ पे लाइन बताई ना, वो यहाँ पे कौन है बेटा, वो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, जो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर में से चलती है और दोनों रेडिया को, दोनों सरफेस के जो रेडिया को ऐसे छेद करते हुए, है ना, उसको पास करते हुए जो लाइन मिलती है, इंटरसेक्ट होती है, उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये हमने टर्म्स लर्न किए हैं, दिस आर इम्पोर्टेंट टर्म्स, ठीक है। चलिए, अभी वो जो हमें यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस मिल रहा है, तो वहाँ पे हमें दो पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे कि फोकस F1 मिलेगा, है ना, एक सरफेस के लिए, और दूसरे सरफेस के लिए जैसे कि F2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, फिर हमें जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वो होता है ना बेटा, तो उसमें से जाने वाली एक लाइन मिलती है, तो उसको हम जैसे कि ऑप्टिकल लाइन, जैसे बीचों बीच यहाँ पे जो जैसे हम यहाँ पे बायोकॉन्वेक्स जो लेंस है अपना बायोकॉन्वेक्स, तो यहाँ पे एक लाइन हमें यहाँ पे बीचों बीच जाती हुई दिखाई देती है, दैट इज ऑप्टिकल लाइन हियर, जस्ट ओके, यस, इट्स passes थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, यस ओके। अगेन देखिए बेटा, दीज आर इम्पोर्टेंट हियर एंड वी हैव कंस्ट्रक्ट द रे डायग्राम। अभी हम यहाँ पे ये ऐसे बना के फिर हम बाद में जैसे ऑब्जेक्ट के बारे में सोचेंगे, स्क्रीन के बारे में सोचेंगे, इमेज के बारे में जहाँ पे हम कैसे मिलेगी वो हम सोचेंगे। अभी ये सब हम वहाँ पे सोच सकते हैं, वो रे डायग्राम के द्वारा हम वहाँ पे बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले ये ऐसे यहाँ पे जैसे कि जो टर्म्स है वो टर्म्स को लेकर इसको हमें यहाँ पे रे डायग्राम के द्वारा यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। चलिए बेटा, अभी यहाँ पे सेकेंड लेंस के लिए हम आएंगे यहाँ पे, वही जैसे पहले जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिया बेटा, जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस, फिर यहाँ पे उसका पहला फोकस, फिर यहाँ पे उसका दूसरा फोकस। चलिए देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए स्क्रीन के ऊपर, ठीक है बेटा। फिर बाद में हमने उसमें ऑप्टिकल सेंटर में से चलने वाली बीचों बीच लेंस के मिलने वाली जो दैट इज नॉट इमेजिनरी लाइन है यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमें वो मिलती है, ठीक है। तीसरे लेंस के लिए प्रिंसिपल एक्सिस, फिर इसके लिए F1 है, फिर F2 है, सेम उसी तरह से हमें यहाँ पे क्या मिले बेटा, ये तीनों लेंसेस हमने यहाँ पे, जैसे देखिए बेटा, दिस इज अ नेसेसरी हियर, yes okay, and it is related to belonging to using the terms, yes okay, we have learned already in our previous class। देखिए बेटा, अभी हम अभी रूल्स देखेंगे। तो पहला रूल हम यहाँ पे पहले लेंस को लेकर देखेंगे। चलिए, पहले लेंस के लिए मैंने यहाँ पे देखिए बेटा, देयर इज वन इमिटिंग लाइट, है ना, इमिटिंग रे, आई हैव शोन रेड इन कलर। अभी जो इमिटिंग लाइट यहाँ पे दिखाई देती है, रे दिखाई देती है, तो जैसे इमिटिंग रे होती है, इट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वो कैसे बेटा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड पास थ्रू द लेंस। दैट टाइम वो क्या करेगी बेटा, जैसे लेंस से चलेगी, तो यहाँ पे देखिए बेटा, जैसे कि ऑप्टिकल लाइन से वो क्या करती है, रिफ्रैक्ट होगी, उसका पाथ चेंज होगा, और जैसे पाथ चेंज होगा इट्स पासेस थ्रू द, देखिए बेटा, इट पासेस थ्रू द फोकस। दिस इज अ फर्स्ट रूल,
चलिए बेटा समझ में आ रहा है ना। जैसे कि इंसिडेंट लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूर ऑब्जेक्ट से जैसे कि प्रकाश किरण आ रहे हैं और वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो, तो जैसे वो रिफ्रैक्ट होगी लेंस में से तो वो फोकस से क्या होगी बेटा, जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला रूल मिलता है। चलिए बेटा दूसरा रूल, जैसे इमिटिंग लाइट is passes through the focus. Emitting light passes through the focus, and when it's refract, that time it's a parallel to the principal axis. Parallel to the principal axis. अभी देखिए बेटा, when the emitting light is passing through the optical center, ठीक है, and it's when it refract, that time they do not show any deviation there, means its path is the same. चलिए, तो इसी तरह से हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा, यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ही बनता है, लेकिन यहाँ पे यही रूल को, अभी देखिए बेटा तीन रूल हमने दिए वाले, अभी ये तीन रूल, इसको यहाँ पे हमें याद रखना है। देखिए बेटा पहला वाला रूल क्या है बेटा, देखिए व्हेन द इंसिडेंट लाइट और रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस when they reflect passing through the focus, पहला रूल। दूसरा वाला रूल क्या है बेटा, when the incident light passing through the focus and when reflect, जैसे reflect होगा, yes it's a parallel to the principal axis, and when incident light, yes it's a, देखिए बेटा incident light is passing through the, that is a optical center, yes okay, that time it does not show any kind of deviation, it remains same, just okay, path continue, follow it, just okay. These are three important rules, just okay, and these rules are used in a just constructing the ray diagram of the lenses. So here we have also construct the our experimental ray diagrammatic representation here in our next slide, how we have constructed, and in that construction we have used these three rules. These are very important, these are necessary for learning the lenses. So we have comes in our next slide. So हम next slide में उसको हम क्या करेंगे बेटा, डिटेल्स में चलेंगे। In this slide we have learned the how to construct the ray diagrammatic representation. ठीक है बेटा, हम यहाँ पे अभी रे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे अपने एक्सपेरिमेंट जो कैरी ऑन किया है, एक्टिविटी फॉलो की है हमने, उसी एक्टिविटी को लेकर अभी हमें जो स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बन रही है, तो इसको कैसे हम इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे कि हम वहाँ पे जैसे पेड़ वगैरह ऐसा ड्राइंग न करते हुए अभी यहाँ पे हमें सिंपली रे डायग्राम को क्या करना है बेटा, यहाँ पे फॉलो करना है। तो देखिए बेटा पहले अपने रूल को, जैसे टर्म्स को सही ढंग में उसको हमें लर्न करना है, उसको फॉलो करते हुए चलना है। तो ऐसे कोई यहाँ पे ऐसे कठिनाइयाँ बिल्कुल ही नहीं है, ये सिंपल सा है। तो देखिए बेटा हमें टर्म्स को, रूल को फॉलो करना है और फॉलो करते हुए हमें जैसे कि वो डायग्राम यहाँ पे क्या करना है बेटा, उसको कंस्ट्रक्ट करना है। एक्चुअली देखिए बेटा जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट कहा था, जैसे कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट था, दूरी पे था, तो वो जो कुछ भी ऑब्जेक्ट हो हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करते बेटा, जैसे कि एक इंडिकेशन मार्क्स है, जैसे कि वो रे यूज करके ही हम उसको इंडिकेट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रेड, देखिए बेटा मैं यहाँ पे अभी लेजर बीम लेता हूँ, लेजर बीम के द्वारा यहाँ पे देखिए बीम की ओर, तो यहाँ पे मैंने एक रेड लाइन बताई है, एरो बताया, दिस इज अ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, वी हैव कंसीडर इट, अभी रे के द्वारा मैं यहाँ पे इंडिकेट किया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने कौन से लेंस को यूज किया है बेटा, दैट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। चलिए यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस ली है, तो कॉन्वेक्स लेंस होती है तो उसके टर्म्स है ना, तो उसके जो रूल्स है, कोई प्रिंसिपल है, तो उसको फॉलो करते हुए हम यहाँ पे फिर उसके क्या मिलते हैं बेटा, ये प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर की बताई है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे मिल रही है। ठीक है बेटा, इसका फोकस जैसे कि यहाँ पे ये फोन है, यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा, जैसे कि 2f1 है, 2f2, अभी यहाँ पे देखिए बेटा ये 2f1 और 2f2 है ना, तो देखिए यहाँ पे ऐसे फोकस मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो ये कॉन्वेक्स लेंस ली है, तो यहाँ पे देखिए बेटा दूरी से जो ऑब्जेक्ट है, दूरी के ऊपर, तो उसी ऑब्जेक्ट के ओर से कुछ यहाँ पे
क्या मिलते हैं बेटा, लाइट रे मिलते हैं, इमिट्स होते हैं, दैट इज वन है इंसिडेंट लाइट, एंड दिस इंसिडेंट लाइट यस दे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए अभी रूल्स के द्वारा, और जैसे हमने रूल में देखा था, व्हेन द इमिटिंग लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस दैट टाइम दे यस व्हेन दे रिफ्लेक्ट दैट टाइम दे पासेस थ्रू द फोकस, है ना। जो रूल्स आ गए ना टर्म्स, चलिए वो टर्म्स देखिए बेटा कितना सिंपल है एक्चुअली। देखिए बेटा, तो यहाँ पे जो दूर के ऑब्जेक्ट्स के द्वारा जो मिलने वाली जो इमिटिंग लाइट्स होते हैं, इंसिडेंट लाइट होते हैं, वो किसको पैरेलल चल रही है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस को। और जैसे लेंस के द्वारा, जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस जो है उसके द्वारा जो वो रिफ्लेक्ट होगी, तो वो कहाँ से चलेगी, जैसे कि फोकस से चलेगी, और जैसे फोकस पे मिलती है तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है बेटा, इमेज मिलती है। वहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा, इमेज मिलती है ऑन दैट स्क्रीन। एक्चुअली ये जो लेंस है एज अ सेल्फ स्क्रीन जैसे काम करता है यहाँ पे एक्चुअली। देखिए बेटा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, इमेज, जैसे कि इमेज मिलती है, जैसे ये इमेज मिलेगी दैट इज वन हैव अ हाई डिमिनिश्ड इमेज, और ये कैसी मिलती है बेटा, दैट इज वन हैव अ यस इट्स अ रियल इमेज बट इट इन्वर्टेड, है ना बेटा। तो ऐसी इमेज यहाँ पे मिलती है। अभी हमें यहाँ पे क्या, जहाँ भी इमेज मिली है वहां से क्या करना है बेटा, हमने जो प्रोसीजर देखी थी ना एक्टिविटी में, जो स्टेप देखे थे उसमें क्या बोला था, जैसे जहाँ पे हमें मिरर मिलती है, सॉरी इमेज मिलती है, तो उसी इमेज, जैसे स्क्रीन के ऊपर मिलने वाली इमेज, तो स्क्रीन एंड लेंस इसमें क्या जो डिस्टेंस बनता है वो डिस्टेंस हमें यहाँ पे मेजर करना है। अभी जो डिस्टेंस मिलेगा उसको जो उसका जो रीडिंग मिलेगा सेंटीमीटर में, वो रीडिंग हमें क्या करना है, ऑब्जर्वेशन टेबल में उसको हमें नोट डाउन करना है। ठीक है, जैसे कि देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे मेरे पास ऐसे फुल लेंथ, जैसे कि ऑप्टिकल लेंस होती है, उसका मिडिल यहाँ पे जीरो होता है, और जीरो से राइट साइड की चल बाजू में जाए तो भी वहाँ पे कंटिन्यू नंबरिंग होती है, मेजरमेंट्स होते हैं उसके, और लेफ्ट साइड में भी कंटिन्यू उसके मेजरमेंट्स होते हैं, 1 2 3 ऐसे। लेकिन यहाँ पे मैंने यहाँ पे जैसे इतनी बड़ी स्केल मेरे पास नहीं है इंडिकेट करने के लिए, तो मैंने यहाँ पे सिंपली जैसे 2 स्केल को यूज करके यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। एक्चुअली देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे एक लेंस जो स्टैंड के द्वारा यहाँ पे फिक्स की वाली, जैसे 5 सेंटीमीटर के ऊपर यहाँ पे मैंने उसको क्या कर दिया बेटा, रख दिया है, और स्क्रीन भी है वहाँ पे। ठीक है, तो एक्चुअली जैसे मैं यहाँ पे एडजस्ट करते हुए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर के ऊपर वो बनी है, आ चुकी है लेंस एडजस्ट करते समय। ठीक है, और दूरी के ऊपर ये ऑब्जेक्ट है। अभी जहाँ पे मैं 5 पॉइंट के ऊपर जैसे लेंस आती है, एडजस्ट होती है, तभी यहाँ पे मुझे क्लियर इमेज बनती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो जैसे स्क्रीन के ऊपर मुझे क्लियर इमेज मिलेगी तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, है स्केल के द्वारा उसका स्क्रीन इन बिटवीन डिस्टेंस, किसके बिटवीन का डिस्टेंस, स्क्रीन एंड लेंस, इसमें का जो डिस्टेंस मिलेगा उसको मैं मेजर करूँगा। अभी वो मुझे शायद कितना, जैसे कि कुछ तो 17.3 ऐसा कुछ तो मिलेगा। तो एक्चुअली यहाँ पे कितना बेटा, 5 है, तो इसमें से वो माइनस करके जो मुझे रीडिंग मिलेगी, वो रीडिंग में यहाँ पे कंटिन्यू उसके फोकल लेंथ मैं उसको क्या कर सकता हूँ, उसको इंडिकेट कर सकता हूँ सेंटीमीटर के द्वारा। ठीक है बेटा, अभी ये कैसे इंडिकेट किया गया है, तो हम एक नेक्स्ट स्लाइड में उसका ऑब्जर्वेशन टेबल यहाँ पे लर्न करेंगे, उसको देखेंगे। तो हम अभी अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में चलते हैं। तो चलिए बेटा, हम यहाँ पे अभी ऑब्जर्वेशन देखेंगे। तो हमने जो रीडिंग्स मीटर स्केल के द्वारा जो लिए हैं, यही ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें यहाँ पे पुट करने हैं। तो एक्चुअली देखिए बेटा, आई हैव ऑलरेडी पुटेड द रीडिंग्स। देखिए बेटा, यहाँ पे आई हैव मेक द 3 columns. Yes, okay, that is a position of a convex lens, position of white screen and focal length of a convex lens. हमें यहाँ पे focal length ही ड्रॉ करनी है ना, अपना एम ही है ये। चलिए बेटा, तो मैंने यहाँ पे देखिए बेटा 2 मीटर स्केल रखे थे। एक्चुअली यहाँ पे जैसे मीटर स्केल के ऊपर, जैसे जो बड़ी वाली मीटर स्केल थी उसके ऊपर मैंने यहाँ पे जैसे लेंस को एडजस्ट किया फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और एडजस्ट करते समय यहाँ पे पहले पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर पे रखा था। फिर 5 सेंटीमीटर पे रखने के बाद मुझे स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बनती थी वो क्लियर मिल रही थी, तो वहाँ पे स्क्रीन का और लेंस का डिस्टेंस मुझे 19.3 सेंटीमीटर में मिल रहा था। तब जो एक्चुअली जो लेंस मैंने वहाँ पे
जो रखी थी पोजीशन के ऊपर 5 सेंटीमीटर के पोजीशन के ऊपर, तो उसको मैं माइनस करते हुए मुझे मिलने वाली फोकल लेंथ कितनी मिल रही है एक्चुअली, दैट इज 14.3 सेंटीमीटर, 14.3 सेंटीमीटर ऐसे यहाँ पे वो मुझे फोकल लेंथ मिल रही है वहाँ पे। जैसे वहाँ पे थी पहली कंडीशन, हमें ऐसे 3 या 4 कंडीशन फॉलो करना है एक्यूरेसी के लिए, क्योंकि हमें फोकल लेंथ यहाँ पे क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करनी है कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म में हम क्या करेंगे, लेंस को फिर आगे पीछे करते हुए हम यहाँ पे जैसे कि 10 सेंटीमीटर पर हम यहाँ पे जैसे वो फिक्स होता है, तो वहाँ पे जैसे फोकल लेंथ हमें यहाँ पे स्क्रीन पे जो मिरर मिलती है, तो वहाँ पे हम फोकल लेंथ जैसे मेजर करते हैं, जैसे कि डिस्टेंस इन बिटवीन स्क्रीन एंड लेंस। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस मिलने वाला है वो कितना मिलता है बेटा, 24.5 सेंटीमीटर मिलेगा। तो एक्चुअली यहाँ पे लेंस अपनी कितने पॉइंट्स के ऊपर बनी वाली है, 10 सेंटीमीटर पॉइंट्स के ऊपर, तो हम उससे वो माइनस करके अपनी फोकल लेंथ वहाँ पे हम ऑब्टेन करेंगे, वो कितनी मिलती है बेटा, 14.5 सेंटीमीटर, ये इतनी मिलेगी। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, ये एक्टिविटी फॉलो कर दी है, जैसे कि लेंस 15 सेंटीमीटर के ऊपर रखकर एक बार a procedure, same procedure we have carried here. Again we have put the lens at 20 centimeter and position, and we have again do the same procedure, follow it. That time we have get the different focal lengths there, and actually we have take there how many readings we have obtained here, we have do here, we have carried here, we have carried the 4 activities, we have repeatedly we have सेम प्रोसीजर फॉर 4 टाइम। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इसका एवरेज फोकल लेंथ यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे हम छोटा सा फॉर्मूला जो हमें पहले ही पता है, मालूम है, सिंपल सा, दैट इज एवरेज फोकल लेंथ। जैसे एवरेज हो तो हम क्या करते हैं बेटा, टोटल वैल्यू को उसकी टोटल सम लेते हैं, और जितनी हमने जैसे जितने एटम में हमने किए हैं उतने एटम्स वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए बेटा, हमने वो जो 4 हमें जो मिलने वाले जो रीडिंग्स थे, उस रीडिंग को हमने क्या कर दिया, उसकी एटो सम कर दी, उसका सम कर दिया। फिर इसके बाद हमने उसको 4 से हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे, और जैसे 4 से डिवाइड करते हैं तो देखिए बेटा उसकी टोटल सम कितनी मिलती है, 57.6 मिलती है, और उससे 4 से जैसे डिवाइड किया जाए तो यहाँ पे आने वाला जो आंसर मिलता है हमें कितना मिलेगा बेटा, दैट इज बना वो 14.4 centimeter, and this is a focal length, this is a focal length of a convex lens। चलिए, जो अपना जो एम था, यही एम हमने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा, इसको ऐसे फाइंड आउट कर दिया है। तो देखिए बेटा, इसके बाद हमें यहाँ पे कंक्लूजन मिलता है। तो यहाँ पे मिलने वाला कंक्लूजन क्या है बेटा, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस बाय फोकसिंग ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वी गेट द 14.4 सेंटीमीटर। ऐसे यहाँ पे क्या मिल रहा है बेटा, वी हैव गेट द कंक्लूजन हियर। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर दिया है, फोकल लेंथ को फाइंड आउट किया है। समझ में आता है? तो एक्चुअली देखिए बेटा, इसको हम थोड़े से रे डायग्रामेटिक को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर करने के लिए एक एनिमेशन इफेक्ट हम अगले स्लाइड में देखेंगे। तो हम अभी एक एनिमेशन देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बेटा, हम अभी इस स्लाइड में अपने जो एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा क्लियरिफाई करेंगे। तो क्लियरिफाई करने के लिए हमने जो रे डायग्राम बनाई थी, तो रे डायग्राम एक्चुअली बनते कैसे है, और इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या नेसेसरी होना चाहिए, वो ऑब्टेन हियर। देखिए बेटा, हमें यहाँ पे जैसे कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये पता होनी चाहिए, ठीक है बेटा। जैसे कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे ज्ञात होना चाहिए। नेचर ऑफ इमेज, स्क्रीन के ऊपर इमेज कैसे मिलती है वो हमें यहाँ पे मालूम होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये सब जब मालूम हो गए तो हम यहाँ पे अभी देखिए बेटा रे डायग्राम बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रूल को फॉलो करते हुए। देखिए बेटा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज फार, हम जो अभी एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन किया था, इसमें अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट था, इस दूरी पे था, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे पेड़ लिया है, एंड दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, जस्ट ओके, वी हैव चूज फॉर आवर एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ठीक है बेटा। तो इसी ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, स्क्रीन के ऊपर इसकी क्लियर इमेज क्या करनी है, बनानी है या प्राप्त करनी है कॉन्वेक्स लेंस को लेकर। चलिए, तो हम अभी यहाँ पे
जैसे इमेज कैसी बनती है रे डायग्राम को लेते हुए यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्ट करेंगे। चलिए बेटा अभी यहाँ पे देखिए बेटा, तो एक एक पहले हम यहाँ पे देखिए बेटा, जैसे कि हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस ले रहे हैं ना, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होती है बेटा, दो सरफेस होते हैं। थोड़ा सा मैं डिटेल में यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखिए उसके जो दो सरफेस होते हैं, जैसे पहला सरफेस, पहले सरफेस के लिए उसकी जो रेडिया होगी, बस सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वो पूरा यहाँ पे हमें यहाँ पे दिखाई देता है ना। अभी यहाँ पे उसको हम F1 बोलेंगे, जैसे कि F2 बोलेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए बेटा दूसरे सरफेस के लिए, जैसे कि F2 है, ऐसे दो सरफेस मैंने कंबाइन करने का प्रयास किया है, बताने का है, जैसे कि तुम्हें क्लियरिफाई करने के लिए थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे, उसको क्या बोलते हैं, जैसे एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, जैसे पृथक्करण, है ना। चलिए बेटा, तो यहाँ पे हमने दो सरफेस को लेके यहाँ पे ऐसा कॉन्वेक्स लेंस मिल रहा है। अभी इसी कॉन्वेक्स लेंस को लेकर हमें यहाँ पे पूरे टर्म्स जो हमने पहले लर्न किए थे वो टर्म्स यहाँ पे अरेंज कर दिए। अभी रूल फॉलो करेंगे। अभी रूल फॉलो करते समय देखिए बेटा, जो जो अपना पेड़ है तो 2F1 के दूर है ना बेटा, दैट इज अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। अभी जैसे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो तो यहाँ पे देखिए बेटा, जैसे लाइन पास होती है, जैसे लाइन अभी इमिट होगी ऑब्जेक्ट्स की दूरी के ऊपर, जो ऑब्जेक्ट्स है उसके द्वारा कुछ लाइन यहाँ पे इमिट होती है, दैट इज इंसिडेंट रे बोलते हैं हम इसको, है ना। अब ये टर्म्स तो नेसेसरी है, कोई भी हम जैसे लेंस के बारे में स्टडी करें तो ये टर्म्स पहले हमें यहाँ पे ड्रॉ करनी ही पड़ती है, ठीक है बेटा। तो ही हम यहाँ पे रे डायग्राम सही तरह से यहाँ पे बना सकते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे वो एक कौन है बेटा, दैट इज वन ऑप्टिक लाइन जिस ओके पासिंग थ्रू द मिड ऑफ द लेंस, जिस ओके। नेक्स्ट अब यहाँ पे इंसिडेंट लाइन बन रही है, ब्लैक कलर की मैंने बताया, देखिए बेटा ये दो इंसिडेंट लाइन, दो इंसिडेंट लाइन, ठीक है। एरो से इंडिकेट करना है, एरो कंपलसरी है इंडिकेशन के लिए, ठीक है बेटा, डायरेक्शन बताना है। चलिए बेटा, एक्चुअली यहाँ पे क्या होती है, जैसे कि इंसिडेंट लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट टाइम दे पास थ्रू द, व्हेन दे रिफ्लेक्ट दे पास थ्रू द फोकस, वो फोकस से पास होती है। देखिए बेटा फोकस से चल रही, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमें F2 पे मिल रहा है। तो देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे मिल रहा है, F2 के ऊपर। उसकी इमेज कैसी बनती है, साइज हाई डिमिनिश्ड साइज, उसकी इमेज बहुत ही छोटी सी डिमिनिश्ड मिलती है। नेचर कैसा मिलता है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड मिलता है, ठीक है। अभी उसकी पोजीशन कहाँ पे मिलती है बेटा, एट F2 के ऊपर मिलती है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे ए मिलता है। इट्स अ वेरी सिंपल। तो इसमें कोई डाउट है तुम्हें, तो देखिए इसको थोड़ा सा कागज पेन लेकर इसको ट्राई करना है, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल, जैसे तुम प्रयास करोगे तो ये सहज होगा, नहीं तो थोड़ा सा ये क्या है बेटा, इमेजनरी है ना, इसमें थोड़ी सी रुचि बढ़ाओ, थोड़ी सी रुचि डालो, तो खुद ब खुद यहाँ पे कंसेप्ट समझ में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। थैंक यू।